released with Finland, in which Prime Minister has mentioned that military conflicts cannot be a solution for anything. But he has mentioned about Ukraine and stated that whatever is happening, the tensions which are going on in the other parts of the world, there was no mention about Israel or Iran. हिम्मत What's नहीं your है. take upon it? You are still asking me after this long Mahabharata. You are asking me who is Arjun? He has no courage. He will wait for permission. And America right now must be asleep because there is a time difference. Who will he take permission from? He will not utter a word of condemnation or concern on the Israel-US war, illegal war by Israel and US on Iran. Why do you even expect that from the Prime Minister of India? The Prime Minister of India is completely living under a shadow of fear. Whether that fear comes from Epstein or Gautam Adani's case or something which Anil Ambani knows, go and ask Hardeep Puri, he will be able to tell you. There is some huge shadow of fear under which the Prime Minister lives. Don't you see his body language? Sir, during previous governments, India also maintained a strong defense cooperation with Israel. Why is the same policy now being questioned? We are not questioning any relationships that you have with other countries. Don't forget that Israel was recognized by a Congress government. We have no problem with that. The thing is, there is a rule-based order that you need to respect. And it's not either or, that if I am a friend of Israel, I have to be necessarily an enemy of Iran. With Iran, we have historic civilizational ties. Can you ignore that? Strategic ties. We have economic dependence, interdependence. All that you will sacrifice for one friend. Netanyahu is Modi's new friend. Iran has been India's old friend. Don't forget that. पवन जी, आपने कहा कि सेवा तीर्थ और ईरान एम्बेसी की दूरी बहुत कम है और प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे. कांग्रेस की तरफ से क्या रुख है? अगर कंट्रोल हम तो जा ही रहे हैं. हमारे कई इमरान मसूद होकर आए, कई हमारे लोग जा रहे हैं. हमारे यहाँ थोड़े ऐसे कोई रोक टोक होती है. हम थोड़ी अमेरिका से परमिशन लेते हैं, इजराइल से थोड़े परमिशन लेंगे. हम लोग जा रहे हैं, जिनको जाना है अभी लगातार जा रहे हैं. बात यह है कि देश का जो निजाम है, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रतिनिधित्व करता है. देश का विपक्ष तो अपना काम कर ही रहा है. देश का निजाम क्या कर रहा है, देश का राजा क्या कर रहा है, वो राजा कहते हुए हंसी आती है. कठपुतली क्या कर रहे हैं, वो तो विश्व चेला क्या कर रहा है, वो आपके सामने है. Sir, as you said, sir, as you said, is the country heading towards this serious energy issues in the future? Do you see that? And as an opposition, do you have any solutions for it to offer for the government? It's not my job to give solutions to the government which commits blunders without asking us. Did they ask us before going to Israel? Did they ask us to stay silent at the illegal war US and Israel have launched on Iran? Did they ask us why not to issue a condolence message for the absolutely dastardly, cowardly assassination of Ayatollah Khamenei? Did they ask us? So don't ask us for solutions, please. We can give you what we did when we were in power. As far as the crisis which is looming large is concerned, I have given you all the data, starting from the fact that the strategic gesture of support which has been given by Iran to China and Russia in the Strait of Hormuz is not extended to us, and rightly so. We had to just follow the rule-based order. The fact that 10,000 crores of our shipping assets in 38 ships with 1,100 sailors are stuck there is our issue. The fact that the Indian National Ship Owners Association has sought government intervention in getting a safe passage is right there in front of you. The fact that over the past 5 years, half of India's crude oil imports, more than half of our LNG, and 85% of our LPG have moved through this Strait of Hormuz is a fact before you. Our energy security is severely threatened. The HSD, which is the high-speed diesel,
the crude oil processed by Indian refineries. 22% of our road transport depends on that. 14% of our railways depend on that. Mining and quarrying, 13% depends on that. 12% of our manufacturing depends on that. 7% shipping depends on that. 4% agri and food processing. 2% power generation, and 26% miscellaneous depends on that. Our fertilizer issues. We'll have our urea issues because of the gas. So there is a serious, very serious threat looming large. Mike? सर ईरान दूतावास में आज से 3 दिनों का शोक संदेश कार्यक्रम रखा है। आपने कहा कि आपके नेता पहले गए थे, लेकिन आज से शोक संदेश का कार्यक्रम है। क्या कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पे वहां कोई जाएगा शो अपना? देखिए साहब, हम शोक तो जो संदेश- करेंगे ही, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। हमने ही सबसे पहले, खरगे साहब ने बहुत पूरा अपना वक्तव्य दिया, सोनिया जी का एक लेख आपने पढ़ा, राहुल जी लगातार इस पे, प्रियंका जी ने सबसे पहले उन्होंने पोस्ट किया, हम लोग तो सब कर ही रहे हैं। जो देश का राजा है, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके मुंह से न निंदा का एक शब्द निकलता है गैर कानूनी युद्ध का, और न शोक का एक शब्द निकलता है आयतुल्लाह खamenei की हत्या का। तो आप बताइए कहां हम आ गए? ये देश हमारा कहां पहुंच चुका है? विश्व गुरु वाकई था ये देश, इसमें कोई शक की बात नहीं, और हर पीढ़ी ने बनाया था उसको। लेकिन एक ऐसा विश्व चेला आया, उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। बताइए सर, एक सेकंड, माइक आ जाए, एक मिनट बोलने दो। sir, there has been reports that on Epstein files on 2017 March 9, Anil Ambani has suggesting that former CIA head David Petraeus should be the ambassador to India. Does this clearly shows that Anil Well, we have been doing a lot of press conferences on the Epstein files, and with a very sadly, we noticed through all those mails and exchanges of iMessages that India's foreign policy, India's defense policy were, and I'm afraid are, being controlled by this architecture created by Epstein in America. Epstein and Mossad, and Epstein and Yehud Barak, and so on and so forth. And instead of depending on our foreign office, our external affairs ministry, our ambassadors, our diplomats, Mr. Narendra Modi depended on persona non grata, during those days at least, Hardeep Puri. He was a persona non grata. He was not occupying any office, no constitutional position. And Anil Ambani and Yehud Barak, these people were deciding our foreign policy, our defense procurement decisions. And who will be the ambassador of US in India? Imagine. So, माइक आ जाएगा अभी, आप इनको भी देना भाई माइक। इस इशू पर संसद के सत्र के अगले भाग में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कांग्रेस की और पूरे अपोजिशन की? देखिए साहब, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैंने आपको मानवीय पहलू बताया, मैंने आपको ऐतिहासिक पहलू बताया, मैं आपको सामरिक पहलू बताया और आर्थिक पहलू बताया। चारों पहलू के अलावा भी और कई पहलू हैं इसमें। ये तमाम पहलुओं को देखते हुए जाहिर सी बात है कि अगर एक ऐसे निर्णय हमारे प्रधानमंत्री ने लिए हैं, या ऐसे निर्णय जो नहीं लिए हैं, उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे आपकी जिंदगी पर पड़ता है, हमारी आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, हर घर की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तो ये मुद्दा तो गंभीर है और डोमिनेट करेगा ही। सर, आपने दो माइक इधर से आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब इजराइल गए थे प्रधानमंत्री, तो क्या उनको इस युद्ध के बारे में नहीं पता था? तो क्या ये आपका एलिगेशन, आरोप है कि प्रधानमंत्री को इस पूरी वॉर के बारे में पता था और इसीलिए वो वहां पे गए? ये आपका एक एलिगेशन है? आपकी बात मान लेते हैं कि नहीं पता था। ये क्या दोस्ती है आपकी नेतन्याहू के साथ? उसने आपको बताया भी नहीं, आपको बुला लिया और आपके जाते ही काम कर दिया पूरा। ये आप बताइए, अपमान है या नहीं है? आपकी हैसियत क्या है उनकी नजरों में, ये दिखता है या नहीं दिखता? ये तो उस अजम्पशन पे चल रहे हैं हम कि नहीं पता था। और अगर पता था तो आपने ये सारे ऐतिहासिक, मानवीय, सामरिक और आर्थिक नुकसान जो भारत को हो रहा है, उस दिशा में आपने क्या कदम उठाया, मुझे बताइए।
नहीं उठाया, तभी तो मैं आपराधिक चुप्पी कहता हूं। क्रिमिनल साइलेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इसीलिए कहते हैं। सर, ये जो खामेनेई की मौत के बाद भारत सरकार का रुख है, उसको लेकर जब आप सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी या जब गद्दाफी को मारा गया था, तब की यूपीए सरकार ने उसकी निंदा नहीं की थी। इसका आप क्या जवाब? हमने सही स्तर पे सही टिप्पणी उस वक्त भी की थी। बात यह है कि जब कमियां निकालनी है तो नेहरू जी की निकालेंगे, और जब आप खुद पकड़े जाओगे तब भी हम पर निर्भर करोगे। साहब, आपने उस वक्त ये नहीं किया था। हमने जो किया था वो आप सबके सामने है, उसका नतीजा आप सबके सामने है कि भारत का एक दर्जा था, पूरा विश्व भारत की तरफ देखता था। मैंने आपको एक 1986 का उदाहरण दिया, वॉइस ऑफ अमेरिका एक ट्रांसमीटर का, वो नहीं लगने दिया श्रीलंका में हमने। ये प्रभाव था हमारा। और मैं को जब ये बोलता हूं कि प्रभाव था, तो मुझे खुद अफसोस होता है कि मेरे को पास्ट टेंस में बात करना पड़ रहा है कि प्रभाव अब नहीं है। ये हालत है हमारी। हम सरकार नहीं चला रहे, हमें लगता है हम गैंग्स चला रहे हैं। दुबई की प्रिंसेस लतीफा को वहां से अगवा करके सुपुर्द करना है दुबई, वो कर देंगे साहब, तब हमारा प्रभाव क्षेत्र है इंडियन ओशन में। अब नहीं है। बताइए, क्या ये सरकार चलाने का तरीका है? रूल्स बेस्ड ऑर्डर क्या ये होता है कि जब सूट करे तभी? हमने कहा जो देश, जो समाज, जो शख्स, जो कौम सिद्धांत पर चलती है वो लंबा चलती है। हमारी सभ्यता सिद्धांतों पर टिकी हुई है, सिद्धांतों पर चलती है, इसलिए इतनी लंबी चली। लेकिन ये विश्व चेला, माफ कीजिएगा। पवन जी, दो सवाल हैं। एक तो जो भारतीय लोग दुबई सहित जो गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए लोग हैं, वो परेशान है, हैरान है, उनकी वतन वापसी नहीं हो पा रही है। दुबई में भोपाल के करीब 12 से 15 लोग फंसे हुए हैं, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल वहां पर की जा रही है। भारत सरकार की ओर से कोई मदद नहीं पहुंच पा रही, क्या कहेंगे आप? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे 3 सेलर्स भी मारे गए हैं, उन सबको हमारी श्रद्धांजलि। और हमारे कई लोग अटके हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री जब इजराइल गए थे तो एक दोस्त को, अपने दूसरे दोस्त को नहीं बताना चाहिए था कि साहब ये सब होने वाला है, अपने लोगों को थोड़ा महफूज रखो? फिर उसी पे आ गई बात। हमारे हित की रक्षा हमारा दोस्त नहीं कर रहा, फिर भी हम उसके गले पड़ रहे हैं। साहब, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्योंकि पेगासस का रिश्ता है, दर्द का रिश्ता है, एप्स्टीन का रिश्ता है। क्या रिश्ता है साहब? यही तो पूछ रहे हैं हम। हमारे लोग अटके हुए हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और भाई साहब वहां नकली मेडल पहनकर आ गए, इन्हें मालूम ही नहीं था। वो मेडल की चमक में बह गए, भटक गए। यही तो हमारे गंभीर सवाल है साहब, कि क्या डर है आपके अंदर, क्या खौफ है आपके अंदर कि आप भारत के हितों का समझौता करने में 1 सेकंड नहीं लगाते। खत्म, लोग मर रहे हैं, मरने दीजिए, जो उचित समझो वो करो। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। और अगर भारत सरकार को थोड़ी सी चिंता होती तो प्रधानमंत्री इजराइल या तो जाते नहीं, या एक स्टैंड लेते, या गए थे तो कुछ करके आते। अब पवन जी, एक और सवाल है बिहार की राजनीति से इस पे पहले हो जाए, फिर बात। Resolution of international disputes. Thus, India's silence is neglecting the constitutional principles. Absolutely, this silence is historically wrong, culturally wrong, constitutionally wrong. It has a price, economic price to pay. It has a strategic price to pay, and we have to pay. I'm sorry, but generations to come will have to pay the price for this criminal silence. ये मुझे इस बयान से दुख होता है कि हमें श्रीलंका ज्ञान दे रहा है। यह स्थिति आ गई। श्रीलंका की नेवी हमारी नेवी से कहीं कम मानी जाती, हमारी उत्कृष्ट नेवी है। लेकिन जब यह पोत डूबा तो श्रीलंका की नेवी ने बचाव काम शुरू किया, हम लोग अभी कहीं नहीं दिख रहे। और यह खतरे की घंटी
ये खतरे की दस्तक हमारे दरवाजे पे आ गई है। अमेरिका अगर हमारे दरवाजे पे आकर इस तरह का कांड कर सकता है तो सोचिए वो क्या क्या कर सकता है। उसका डर खत्म हो गया है, लिहाज खत्म हो गया, आंख की शर्म खत्म हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि आपके देश का प्रधानमंत्री गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के कब्जे में है, ये याद रखिएगा। हाँ जी, अलग विषय। अब 2-3 क्वेश्चन और अलग विषय पे। हाँ पवन सर, पहला सवाल तो बिहार के विषय में ही है। बिहार में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से बिहारी भाषा में कहते हैं बलजोड़ी नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जा रहा है, उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है, उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। आपको लगता नहीं कि 6 महीने 5 महीने पहले जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था उसके साथ धोखा है? तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, हमें तो कांग्रेस पार्टी को तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमने तो तब चुनाव प्रचार के दौरान कह दिया था कि ये धोखा होने जा रहा है। बीजेपी चुनाव में कुछ और दिखाती है। वो महाराष्ट्र में क्या हुआ था आपके सामने, उससे पहले जम्मू कश्मीर में, हर जगह बीजेपी दिखाती कुछ है, करती कुछ है। और पटना तो अभी झांकी है, अभी तो विशाखापट्टनम बाकी है। बाकी दोस्तों को भी समझ लेना चाहिए क्या क्या हो सकता है। महाराष्ट्र में शक्ल दिखाई शिंदे की, बैग से निकले फडणवीस। हर जगह तो जो भी छोटा ये रीजनल पार्टीज होती हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, ये खुद समझ लें, यात्री अपने सामान की चिंता खुद करें। लेकिन नीतीश कुमार जी भारत की राजनीति के, हम किसी भी दल के हैं, वो अलग दल के हैं, अलग बात है। भारत की राजनीति में जो वरिष्ठतम नेताओं में शुमार है, इस तरह से अपमानजनक तरीके से जबरदस्ती उनको अपने राज्य से निकालकर और राज्यसभा में भेजना, अब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या महसूस कर रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं भारत की राजनीति का एक छात्र की हैसियत से बोल रहा हूं कि भारत की राजनीति में बहुत कम उस सीनियरिटी के लोग बचे हैं। इस उम्र में इस तरह का अपमान भाजपा के हाथों जो हुआ है नीतीश कुमार जी का, ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अब जेडीयू के कार्यकर्ता क्या मानते हैं, नेता क्या मानते हैं, आप उनसे पूछिए। अब इस पे तो हो ही गया, बिहार पे तो पूरा सबके लिए आ गया। धन्यवाद।